پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ 100 انڈیکس میں 2202 پوائنٹس کا اضافہ۔ تیزی کے باعث انڈیکس 2 نفسیاتی حدیں عبور کر گیا۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس نئی بلند ترین سطح 1,36,502 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار مسرت، معاشی استحکام کو حکومتی پالیسیوں کا ثمر قرار دے دیا۔ حکومت نے اپنے اخراجات میں نمایاں کمی کے ذریعے معیشت کو مستحکم بنانے کی سمت قدم بڑھایا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ بینکنگ سیکٹر کو سرمایہ کاروں کے ساتھ ملا کر صنعتوں کی بحالی اور ترقی میں کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے تاجروں کو اسلام آباد آ کر مذاکرات کی دعوت بھی دی اور واضح کیا کہ FBR کے اختیارات کا انکم ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کی معاشی کارکردگی حوصلہ افزا، IMF کی 2025 اور اس کے بعد مسلسل ترقی کی پیشگوئی۔ سیاسی رکاوٹوں، عالمی غیر یقینی صورتحال اور تجارتی کشیدگیوں کو اہم چیلنج قرار دے دیا۔ ٹیکس نیٹ کی توسیع، بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے نظام میں بہتری اور ماحولیاتی اصلاحات کو معیشت کی دیرپا بحالی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ ٹیکس اصلاحات میں عام آدمی کی سہولت پر توجہ مرکوز کی جائے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ FBR کی ڈیجیٹائزیشن، AI پر مبنی نظام کے اطلاق اور دیگر اصلاحات پر اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کہ گوشوارے بھرنے کے عمل میں مدد کے لیے ہیلپ لائن قائم کی جائے، ڈیجیٹل نوائسنگ کا بھی اردو میں اجرا کیا جائے۔ نئے آسان ٹیکس گوشواروں سے تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ مستفید ہوگا۔ ڈالا کلچر پہ میں نے کریک ڈاؤن کیا ہے، مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے، یہ شو آف اور یہ برانڈشنگ آف ویپنز اور شو آف پاور۔ تو میرے بیٹے کی جو سیکیورٹی کی کار تھی، اس کو جو ہماری پیٹرولنگ کی گاڑی تھی اس نے پکڑ لیا۔ تو مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ نے اپنا کام کیا، اپنی ذمہ داری سر انجام دی، اپنی ڈیوٹی کو آپ نے نبھایا آپ نے، تو میں اس کے لیے آپ کو شاباش دیتا ہوں۔ آپ کریں میرا چالان۔ قانون صرف غریب کے لیے نہیں، طاقتور پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ڈالا کلچر پر کریک ڈاؤن کیا، ڈر سے پیچھے ہٹنے والا میرے لشکر میں نہیں رہ سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہہ دیا، بولی فرسودہ سوچ کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ پنجاب کے عوام کی خدمت میرا فرض ہے۔ میرے بیٹے کی گاڑی کو پیٹرولنگ پولیس نے روکا، جنید نے کہا مجھے روکا، اب چالان کریں۔ وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر مشیر کا بیٹا، قانون سے بالاتر کوئی نہیں۔ ایران کو دفاعی حق کے استعمال پر مکمل سپورٹ کرتے ہیں، ہم آئندہ بھی ایران کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ہمارے لیے ایران اور عراق میں موجود زائرین اہم ترین ہیں۔ تہران میں وزیر داخلہ محسن نقوی کا سہ ملکی کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان نے ایران پر حملے کی کھل کر مذمت کی اور ہم ایران کے دفاعی حق کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات کی، ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی اہم ملاقات طے۔ FC ملک گیر فیڈرل کانسٹیبلری میں تبدیل، صدر مملکت آصف علی زرداری نے آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ FC کو ملک گیر وفاقی فورس میں تبدیل کر کے دائرہ اختیار چاروں صوبوں اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تک بڑھا دیا گیا۔ سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے لیے 2 نئی ڈویژنز قائم، پولیس سروس آف پاکستان کے افسران کمان سنبھالیں گے۔ وفاقی حکومت ریزرو فورس بھرتی کر سکے گی، نئی بھرتیوں کے لیے ملک گیر دفاتر کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں FC دیگر لا فورس اداروں کی طرح کام کرے گی، وفاقی پولیس بنانے کا کوئی پروگرام نہیں۔ پنجاب KPK بلوچستان میں مانسون کا دھواں دھار اسپیل، KPK میں بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی، دیواریں گرنے اور سیلابی ریلے میں بہنے سے 5 افراد جان سے گئے۔ لاہور میں بھی بارش، اسلام آباد میں صبح سویرے ہی سورج کی تلملاہٹ، شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے، کراچی والے دھواں دھار برسات کے انتظار میں راہ تکنے لگے۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، شہر میں 18 جولائی سے بادل برسیں گے۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ 20 جولائی تک جاری رہ سکتا ہے۔ شہر میں بارش برسانے والا سسٹم شمالی علاقوں سے سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سندھ کے تمام اضلاع میں سسٹم کے تحت تیز بارشوں کا امکان ہے۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، اسپل وے تیسری بار کھول دیے گئے۔ PTMA کا DC ہری پور، سبابی اور نوشہرہ کو مراسلہ ارسال۔
करीबी आबादी और सयाहों को दरियाए सिंध से दूर रहने और आबी गुजरगाहों में नहाने से गुरेज की हिदायत। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से 16 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी, दर्जनों मकानात मुतासिर, फसलें तबाह हो गईं। PDMA की रिपोर्ट। लकी मरवत के इलाके दौलत खेल के करीब तालाब में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक। चारों बच्चों की लाशों को निकालकर सिटी अस्पताल लकी मरवत मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक बच्चों की शनाख्त रहीम, फहीम, फहद और हम्माद के नामों से हुई। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर केस में अहम पेशरफ्त। फ्लैट से कोई नशा आवर चीज बरामद न हुई। फ्लैट में CCTV कैमरे नस्ब न होने के बायस तहकीकात में रुकावट। पुलिस ने फ्लैट मालिक और पड़ोसियों के बयानात कलम बंद किए। अतराफ के कैमरों से फुटेज हासिल करने की कोशिश जारी। अदाकारे के पोस्टमार्टम और घर से हासिल शुदा नमूने फॉरेंसिक लेबॉरेटरी को मौसूल। हुमैरा के भाई के ब्लड सैंपल से DNA की तस्दीक की जाएगी। पार्टी में ग्रुपबंदी नहीं होनी चाहिए, सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासी इंतकाम से बैरून दुनिया में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंच रहा है। जो बच्चे सिर्फ वालिद से मिलने आ रहे हैं उन पर गिरफ्तारी की बात शर्मनाक है। असम्बली में नारेबाजी और कालम गलोच की इजाजत नहीं होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का दो टोक फैसला। नाइली की दरखास्तें रेफरेंस नहीं, फैसला इनके मुताबिक और 223 के तहत 30 दिन में करूंगा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान को बराबर का बोलने का हक है। इलेक्शन कमीशन को दरखास्त भेजने का इख्तियार बरकरार। अदालतों का खुद नोटिस देना निज़ाम में मदाखलत के मुतरादिफ। मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर सियासी जमातों में जंग। इलेक्शन कमीशन ने नई तारीख केस पर फैसला महफूज कर लिया। PTI ने मखसूस नशिस्तों को जनरल नशिस्तों से मशरूत करार देकर मौजूदा तकसीम को चैलेंज किया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत दीगर जमातों ने मौक़िफ़ की सख्त मुखालफत की। मेंबर इलेक्शन कमीशन के अहम सवालात, वकला के आईनी दलाइल। KPK के 60% अवाम सूबाई हुकूमत से नाला। गैलप सर्वे रिपोर्ट जारी। KP हुकूमत की कारकर्दगी सामने आ गई। अवाम ने हुकूमती कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। 54% ने करप्शन में बेतहाशा इजाफे की निशानदेही की। 70% गैस की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज। 49% बिजली की किल्लत से शदीद परेशान। 54% ने बढ़ते दहशतगर्दी वाक़यात को खतरनाक करार दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की PTI पर तनकीद। कहा, गैलप सर्वे KP हुकूमत पर अवामी तमाचा है। कल तक सर्वे पर भंगड़े डालने वाले आज अपनी कारकर्दगी पर खामोश हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज चीन रवाना होंगे। शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में चीन, रूस, भारत, बेलारूस, ईरान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। अवाम के लिए बुरी खबर, मुल्क में पेट्रोल महंगा होने का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा होने के असरात। पाकिस्तान में पेट्रोल 6 रुपये 60 पैसे और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 57 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। जबकि मट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमतों में 3 रुपये 74 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। कीमतों में रद्दोबदल की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। सोने की फी तोला कीमत में 1600 रुपये का इजाफा। नई कीमत 3,08,384 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1371 रुपये इजाफे से 3,08,384 रुपये हो गई। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। फी किलो नर्ख 220 रुपये से तजावुज़ कर गए। पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा समेत तमाम बड़े शहरों में रेट तारीखी सतह पर। चीनी की किल्लत, गोदामों में ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ज़ायद बरामदात और हुकूमती चशमपोशी बहरान की बड़ी वजूहात करार। अवाम महंगाई से परेशान। दुकानदारों और मिल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ गया। बिटकॉइन की कीमत में तारीखी इजाफा। पहली बार 1,20,000 अमरीकी डॉलर्स की हद उबूर कर ली। 1,21,207 डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। माहिरीन की जानिब से बिटकॉइन के 1,50,000 डॉलर तक पहुंचने की पेशगोई। क्रिप्टो मार्केट में गैर मामूली सरगर्मियों ने सरमायाकारों की तवज्जो हासिल कर ली। कराची के इलाके बगदादी में रिहायशी इमारत केस में पेशरफ्त। पुलिस ने एक और शरीक मालिक ताज मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया।
SBCA के अफसरान और दीगर नामजद मुल्जिमान दोबारा अदालत में पेश। मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, तमाम मुल्जिमान को जेल भेज दिया गया। ट्रांसपोर्ट और ताजिर बरादरी का हुकूमत से मुज़ाकरात का ऐलान, 2 टोक अल्टीमेटम भी दे दिया। 19 जुलाई को मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। अशिया खुरोनोश, खाम माल और सप्लाई की हर किस्म बंद होगी। 5 मुतालबात तस्लीम या मुकम्मल बंदिश। वजीर खजाना की अदम दिलचस्पी पर बरहमी। जावेद बलवानी कहते हैं वजीर आज़म ऑफिस और वजारत खजाना से फ़ोन आ रहे हैं। आलमी दहशत गर्दी के मज़मूम मज़ाइम जारी। इसराइल का गज़ा पर मिसाइल हमला, 6 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। 5 बच्चों की हालत तशवीशनाक। सहूनी फौज ने नसीरात कैंप में पानी की तकसीम के मरकज़ को निशाना बनाया। फ़िज़ाई हमलों में 24 घंटों में 95 अफराद जान से हाथ धो बैठे, दर्जनों ज़ख्मी। फ्रीडम प्लॉटीला के तहत फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर हंजला नामी कश्ती इटली के शहर सिसिली की बंदरगाह से गजा रवाना। 15 इंसानी हुकूक के कारकुन सवार। कश्ती में तिब्बी सामान, खुराक, बच्चों की ज़रूरी अशिया और अद्वियात मौजूद। रवानगी के मौके पर फ़लस्तीनी परचम लहराए गए। फ्री फ़लस्तीन के नारे। इमदादी कारकुनों का इसराइली नाकाबंदी तोड़ने का ऐलान। जकार्ता में 6.7 शिद्दत का ज़लज़ला, इमारतें लरज़ उठी और लोगों में खौफ व हरास फैल गया। ज़लज़ले की गहराई 98 किलोमीटर रिकॉर्ड। इंडोनेशिया के महकमा ज़लज़ला के मुताबिक ज़लज़ले से सुनामी का खदशा नहीं। टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद तबाहकुन सैलाब ने 132 जिंदगियां निगल ली। 160 लोग लापता। कई बस्तियां सफ़ाए हस्ती से मिट गईं। 100 से ज़ायद घर तबाह। मुतासरा इलाकों में मजीद सैलाब के खदशे के तहत बड़े पैमाने पर इनखला। इमदादी कार्रवाइयां जारी। भारत को करारा जवाब। एशिया कप के बाद पाकिस्तानी जूनियर हॉकी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेगी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप रवा साल 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत की जूनियर टीमें ग्रुप बी में शामिल हैं। विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए 20 मुमकिन खिलाड़ियों के नामों का बाज़ाब्ता ऐलान। फाइनल स्क्वाड 15 अक्टूबर को मुंतखब होगा। इवेंट रवां साल नवंबर में भारत और नेपाल की मेज़बानी में मुनक्किद होगा। बुशरा ज़हूर, बिस्मा हुसैन, शुमाइला किरण, रिमशा शब्बीर समेत बासलाहियत ख़वातीन खिलाड़ियों की शमूलियत। कौमी विमेंस टीम पहली बार आलमी सतह पर मैदान में उतरने के लिए पुरजोश। और चेल्सी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया। न्यू जर्सी में खेले गए फाइनल में PSG को 3-0 से शिकस्त दे दी। पामर ने 2 और पेड्रो ने 1 गोल स्कोर किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी स्टेडियम में मैच देखा। चेल्सी को मैच जीतने पर ट्रॉफी भी दी।